Namaskar to everyone. Just before starting my speech, just before starting my speech, I just wanted to tell you that I just posted the pictures that I'm here and speaking on the topic regarding the COVID vaccine and reproductive health, rather the women's health. I've been removed from my groups that were spreading the misinformation regarding the COVID vaccines. So I'll be talking a bit about women's health, but before that, there are certain issues which I would like to point out to the general public because, of course, I can understand the dilemma of the public in while they come with their near and dear ones to the doctors, and the behavior of the doctors is not. I would say rather it's very fishy and it's not good, and we are not taught all those things at all, how to deal with emergencies. Rather, it should be I've been telling my children, my elder son is in management of the hospitals, that you should start the services and teach the doctors how to talk to the patients while they are admitted. Unnecessarily means unforeseen complication due to the surgery or to the medical treatment, and how to behave with the attendants, how to talk with the attendants. So that's another subject. But what I want to start with that, there's no immune response in which is entirely free of risk of adverse reactions and remote sequelae. So if you think that you are giving or putting anything in the form of the vaccines in the body, there won't be anything happening to the immune response. It is not going to happen. And in this era where number of the diseases, especially the chronic health conditions like diabetes, hypertension, autoimmune disorders, autism, Parkinsonism, and Alzheimer and whatnot, and the admissions in the ICU, number of the drugs which are being produced, and the resistance of the antibiotic, the number of the health coaches, and the number of the influencers. And we doctors, we are not taught nutrition. तो हमको भी अब हम भी लोगों को आज ही बोलते हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, and we have come to the एक टर्मिनोलॉजी की होल प्लांट बेस्ड फूड जो है, ऑर्गेनिक लो, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लो. और आपके सबके इंफॉर्मेशन के लिए आई वांटेड टू टेल यू दैट द वैक्सीन्स दे आर फुल ऑफ द एडिटिव्स, इमल्सिफायर्स. उनमें एंटीजेंस होते हैं विच आर किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस. और एचपीवी वैक्सीन में तो चिंपांजी एड्रीनोवायरस जो होता है एज ए वेक्टर यूज किया जाता है. तो बहुत सारे वैक्सीन्स में एनिमल्स में जो पाए जाने वायरस या बैक्टीरिया होते हैं उनको यूज किया जाता है. वी आर यूजिंग एडजुवेंट्स लाइक एल्युमिनियम. हर वैक्सीन में ज्यादातर आपको एल्युमिनियम मिलेगा, एल्युमिनियम फॉस्फेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, वाटर ऑयल इन वाटर मिलेगा, आपको प्रिजर्वेटिव लाइक जो आप खा भी नहीं सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे, बोरिक एसिड मिलेगा, बोरेट मिलेगा, पॉलीसॉर्बेट 80 मिलेगा, और इट माइट कंटेन अ ट्रेस ऑफ एग प्रोटीन्स ऑल्सो. और वो आप इंजेक्ट कर रहे हैं, कुछ में ही आप ओरली दे रहे हैं. अमाइनो एसिड, जिलेटिन वगैरह, ये सब आप लोगों को वैक्सीन के अंदर मिलेगा. तो आज के जमाने में जब हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आपको हेल्दी खाना है और आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, वैक्सीन के थ्रू वी आर पुशिंग सो मेनी अननेसेसरली इंग्रेडिएंट्स इन आवर बॉडी. एंड आई वोंट से कि ये सारा कुछ ओनस डॉक्टर्स के ऊपर जाता है, बिकॉज अभी बहुत सारी बातें हो रही है डॉक्टर्स के लिए, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर अंडर प्रेशर इन द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स. जो हम लोग हैं, हमको भी अपने घर चलाने हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ नहीं खड़ी हूँ, बट सबको अपना काम करना है. अभी आरजी घर में कलकत्ता में वो डॉक्टर की जो मर्डर हुआ, रेप हुआ, सब 1-2 महीना चला, फिर सब अपने अपने काम कर रहे हैं. प्लस फार्मा कंपनीज को 2 मिनट नहीं लगेंगे किसी भी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करने में या उनको बर्बाद करने में. अमेरिका में, यूएसए में कई डॉक्टर्स का मर्डर्स भी हो चुके हैं. दैट्स नॉट सो वेरी कॉमन इन इंडिया. तो ओनस जो है बहुत कुछ पब्लिक के ऊपर भी जाता है. अब आजकल तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सब कुछ गूगल करके पढ़ के कि क्या डिजीज है, क्या मतलब रेंटेक के लिए बोलते हैं कि डॉक्टर साहब इसको खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. तो एक सजेशन मेरा, मतलब बिफोर टॉकिंग अबाउट द वुमेन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ एंड वैक्सीन, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है हर चीज को
मतलब पढ़े आप वैक्सीन के बारे में भी, सब कुछ गूगल पर एवरीथिंग इज अवेलेबल, चाहे गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है नहीं किया है, पर उसका ओनर्स बहुत कुछ, क्योंकि आप कंज्यूमर हैं तो हमें पढ़कर जाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इन्फॉर्म कंसेंट की बहुत वैल्यू है जो कि हमारे देश में बिल्कुल भी नहीं है, और इसके लिए मीडिया है, अभी सब लोग, आप हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अभी जैसे एचपीवी वैक्सीनेशन हो रहा है, रोटरी क्लब जो है उसको बहुत ज्यादा पुश कर रही है, स्कूल्स में कर रही है, इन्फॉर्म कंसेंट्स ले रही है, पर उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं बता रही है, बस आपको वैक्सीन लग जाएगा, सेफ्टी है ये। तो पेरेंट्स का ओनर्स भी बहुत ज्यादा है, इस आई वांटेड टू स्ट्रेस। मोरओवर हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि गवर्नमेंट जो है हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट इज बीइंग पुश बाय द सी, पूरा जो मैंने समझा है या पढ़ा है उसमें ये कि पूरा वर्ल्ड जो है, पॉलिटिशियंस, मीडिया, आपका फार्मास्यूटिकल एंड डिफेंस में जो है, यही पूरे वर्ल्ड का जो है मोनोपोली चला रहे हैं, फाइनेंसेस जो है मैनेज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर रूल बना सकती है या एडवर्टाइज कर सकती है कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए, तो ऐसे ही पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स को अवॉइड करने के लिए, जैसे सर्वाइकल कैंसर है उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जैसे सर्वाइकल, आई एम टोटली अगेंस्ट एचपीवी वैक्सीन, क्योंकि उसके रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर मीन्स आप उसको 100% अवॉइड कर सकते हैं। आजकल लड़कियां दे आर बिकमिंग सेक्सुअली प्रोमिस्क्यूअस, 12 साल की एज से लड़कियां सेक्सुअली एक्टिव हो गई, मल्टीपल पार्टनर्स हैं। पिल्स, ओसीज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे ही मिल रहे होते हैं, ओवर द काउंटर जाओ आप उठा लो पत्ता, किसी को कोई मतलब नहीं, आंगनवाड़ी वर्कर्स आपको दे देंगे। सो गवर्नमेंट, वी हैव टू, वी द पब्लिक, द मीडिया, we need to motivate the government to make the rules कि OCs आप गर्ल्स अंडर 18 क्यों आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को लो करते हैं। तो इसी तरह से एपिडेमिक्स और पेंडेमिक जैसे कोविड हुआ, उसके अगर गवर्नमेंट एडवर्टाइज कर सकती है कि कोविड वैक्सीन जो है लेनी है आपको, तो व्हाई कांट दे एडवर्टाइज, या इतना शोर क्यों नहीं मचा सकते कि आप कोविड या पेंडेमिक को या सर्वाइकल कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हम सबको मिलकर, मीडिया को मिलकर, क्योंकि हमें दबाना तो पड़ेगा ही पॉलिटिशियंस को, फार्मा कंपनीज को। तो एक तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को कह रही थी। दूसरा मैं ये कह रही थी कि इन्फॉर्म चॉइसेस जो हैं, कंसेंट्स है, इन्फॉर्म चॉइसेस है, जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, तो अगर एफडीए की जो लिमिट, सेफ लिमिट है एल्यूमिनियम की, वो है अराउंड 25 माइक्रोग्राम आईवी। पर एक बच्चा, एक आयरिश स्टडी के हिसाब से, एक बच्चा बाय द एज ऑफ 15 to 20 years, that child takes around 125 micrograms of aluminium in the body through vaccines alone. इतना वैक्सीन, और इट इज नाउ प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि जो एल्यूमिनियम है दैट इज ए न्यूरोटॉक्सिक, और एल्यूमिनियम जो है आपका एल्जाइमर, पार्किंसोनिज्म, बैड बिहेवियर, वॉलेटाइल बिहेवियर, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्फॉर्म चॉइसेस हम लोगों को बनानी है, पब्लिक को करनी है, और डेफिनेटली हमारा भी रोल है। ये सब अभी ये जो सब हुआ उसके कारण से मैंने भी बहुत पढ़ा, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेटिव। अभी बात हो रही थी कि कोविड से जो साइड इफेक्ट्स हैं उनसे अवॉइड करने के लिए, तो दे आर डेफिनेटली सर्टेन थेरेपीज जो है हम लोग यूज करते हैं, हाई डोज आईवी विटामिन सी वगैरह है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% है, बट डेफिनेटली बहुत कुछ उससे आप कम कर सकते हैं। मेडिटेशन है, एक्सरसाइजेज है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। देन द थर्ड फैक्टर विच आई वुड लाइक टू टेक अप इज दैट, एक हमारे मेडिकल में बहुत बड़ा पैराडिम शिफ्ट आया है। पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो कहते थे कि फर्स्ट डू नो हार्म, कोई हार्म नहीं करना है, और अब उसमें एक इतना बड़ा शिफ्ट आ गया है कि देयर इज अ टर्म कॉल्ड बेनिफिट ओवर द रिस्क। हमको कहा जाता है कि अगर 100 में से या 1000 में से 2 भी मर जाते हैं, पर बाकी के 988 जो है वो बचते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो दैट इज, आई फील दिस इज अ सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग द नैरेटिव, जो कि हमारे इंडिया में हिंदुइज्म और सनातन के लिए भी किया गया। और एक इट इज कॉल्ड एवर्टन विंडो। एवर्टन विंडो का प्रिंसिपल जो है वो ये है कि जो चीज अनथिंकेबल है वो रेडिकल में कन्वर्ट की जाती है, फिर उसको एक्सेप्टेबल करवाया जाता है, फिर उसको सेंसिबल माना जाता है,
फिर उसको पॉपुलर किया जाता है और फिर उसको पॉलिसी में बदल दिया जाता है। यही एवर्टन विंडो जो है वैक्सीन के लिए ही करी जा रही है कि जो चीज बिल्कुल थिंकेबल नहीं थी कि आपको वैक्सीन मैंडेट, अब हर चीज के लिए मतलब वायरस को एलिमिनेट करना है तो वैक्सीन है, बैक्टीरिया को एलिमिनेट करना है तो वैक्सीन है, टाइफाइड हुआ है तो उसको वैक्सीन से करना है, सर्वाइकल कैंसर, तो दिस इज व्हाट द pharmaceutical companies are doing. Now what I have read कि pharmaceutical companies के पास अब drugs बनाने के लिए बहुत कम रह गई है because they are now at the peak of making the drugs. They don't have so many molecules. तो दे आर आफ्टर द वैक्सीन्स, और वैक्सीन्स में उनका एजेंडा है कि छोटे से छोटे बच्चे को लेकर 15 तक की एज के सारे तरह के वैक्सीन्स दे दिए जाएं. सो व्हेन वी स्टार्टेड आवर स्टडीज इन 1988 में, जैसे मैंने अपना एमएस पूरा किया था, तो उस वक्त हम लोग 7-8 वैक्सीन ही देते थे. बीसीजी देते थे, डीपीटी देते थे एंड ओरल पोलियो, और उसके बाद थोड़ा हेपेटाइटिस बी वगैरह का आया. नाउ एवरेज चाइल्ड इज गेटिंग अराउंड 20 to 25 वैक्सीन है, 43 बाय द एज ऑफ 5 years, और भी बढ़ते जा रहे हैं. अभी तो मैंने शायद पढ़ा कि WHO की रिकमेंडेशन है कि कोविड 6 months के चाइल्ड से शुरू है. इट इज कमिंग इन द कि कोविड वैक्सीन जो है 6 months के बच्चे को आप देना शुरू करना. FDA, yes, FDA. So again, yes, and let me tell you, FDA, CDC, NHS, all they are funded by the Bill Gates, and जो भी फार्मास्यूटिकल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारा उनका पैसा इनके पास जा रहा है. तभी अभी कह रहे हैं कि जैसे ट्रम्प ने कैनेडी जूनियर को बनाया तो बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स फॉल कर गए, बिकॉज ही हैज रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल बुक. अगर आप लोगों को वैक्सीन के लिए पढ़ना है तो उस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, कि रियल फेस ऑफ द एंथनी फॉसी. तो वो आप जरूर पढ़ें, उसमें सारे वैक्सीन के बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है. देन ऑफ कोर्स द रिपोर्टिंग सिस्टम जो है हमारी कंट्री का, AFAI का, बहुत ही पुअर है. आप जो कह रहे थे कि 3 रीजन हो सकते हैं, पर मोस्ट कॉमन रीजन जो है वो साइट को फेल कर दिया जाता है. मेरी कई बहुत डॉक्टरों से बात हुई है और वो कहते हैं कि दे आर ट्राइंग टू पुट द कॉजेज. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स को नहीं सफर कर रहे, इवन आई एम हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ब्रेन फैटीग है, in general fatigue. My husband has a transient TIA and no reason was found. He had hemoptysis. अभी उनको neuropathy problems चल रही हैं and there's no treatment. मतलब he had been admitted in Paris for 4 to 5 days. Every painkiller, every drug had been tried. Nothing happened. और फैटीग इज ए मेजर प्रॉब्लम. तो बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि AF में जो भी एजुकेटेड है उनकी मेन एक कंप्लेंट तो जरूर आती है कि जो गवर्नमेंट का पोर्टल है इट इज नॉट फंक्शनिंग. सो आई डोंट थिंक कि वाटर को इंजेक्शन मिलाया गया होगा. इतना तो टाइम ही नहीं होता कि ड्रग्स को आप रिप्लेस करो, वायल्स को, वो सारा. बट डेफिनेटली दे मेक द पोर्टल्स इनएफिशिएंट एंड दे डोंट रिप्लाई बैक. सो दीज एंड डेफिनेटली डॉक्टर्स जो हम लोग हैं, जब हमको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो हम लोग डेफिनेटली कहते हैं कि ये तो बहुत रेयर है, कोई इंसिडेंटल है, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है. या जैसे मुझे लेबल करते हैं कि यू आर एंटी वैक्सर, ठीक है, या तुम साइकोसोमेटिक हो, यू आर अ साइकोसोमेटिक पर्सन. दे विल टेल. अगर रिपीटेडली इफ यू गो टू ए डॉक्टर सेइंग कि मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है और उसका कोई आंसर नहीं है और क्या समझ में ही नहीं आ रहा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा, एवरेज डॉक्टर बहुत ज्यादा पढ़ता है, लिटरेचर को फाइंड आउट करता है. तो ये रीजन डॉक्टर्स के पास रहते हैं. बट डेफिनेटली लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर पुटिंग अप सो मेनी इमल्सिफायर्स, एडजुवेंट्स, सर्फेक्टेंट्स इन द वैक्सीन्स इनटू द इम्यून सिस्टम, the immune system is bound to go haywire. It doesn't know how to respond to so much of the chemicals, because our air is polluted, our food is polluted, our water is polluted, and we are adding more and more polluted things into the blood or into the gut through the vaccines also. So now coming to the final vaccines and the women's health, हम यहाँ पर हैं, हम देख ही रहे हैं कि I will be focusing a bit about TPS. वैसे होने women में जो है encephalitis, myelitis, सीजर्स है, गुलन-बेरी सिंड्रोम, मायोकार्डाइटिस कम होते हैं, बट TTS इज द मेन. और इसमें लिटरेचर में क्लियर इट इज रिटन दैट द चांसेस ऑफ women और the girls having the TTS is 2 times. It is 2 times commoner in girls as compared to the males. And here also we can see
कि जो 12 हैं उनमें से ऑलमोस्ट 90%, 90-95% लड़कियां ही हैं. इट इज देयर द हार्मोनल हॉर्मोन्स इन द बॉडी, बिकॉज ईस्ट्रोजन जो है हम लोग बनाते हैं बॉडी में विमेन के होते हैं, that causes lot of thromboembolism. Plus pregnancy is a very very high risk for the TTS also. Okay, so एक तो ये था. Then let me tell you, the mortality because of the TTS is almost 90% if you treat a person. And it, in spite of best treatment, the mortality is 10 to 15%. And we can just imagine जो कि बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या रिमोट में है, उनकी कैसे मतलब कहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ होगा. वी आर सीइंग हियर गर्ल्स को कैसे लेके मतलब जो प्रॉब्लम्स हुई, दे कैन नॉट डायग्नोज एट ऑल, और उनका इमरजेंसी ट्रीटमेंट बहुतों का नहीं हुआ, एंड सम डाइड इन द वे ऑल्सो. सो टीटीएस इज अ वेरी वेरी मेजर एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. एंड अनदर थिंग इज दैट इसका जो अभी आपने बताया कि स्टडीज हुई है, phase 3 and phase 4 trials for COVID vaccine has not been done, and the report I don't know clearly, but the reports are not available. One of the activists has found that 700 labor behind the closed Union Carbide factory in Bhopal, they were given, the trial was done on 700 laborers without their consent at the rate of 750 rupees. And no audio visual, huh? Precisely my point was, in the morning we heard one trial victim saying that he was of the safety cohort and one of the 1,600 people who had a serious adverse event. And so the point is, like, he was a volunteer from a well-to-do who came on his own volition to help. So if the trial volunteers were picked from this kind of underprivileged people who didn't have a voice, and if they suffered adverse events, they wouldn't even know where to report, and maybe they will be quietly removed from the thing, saying, we see 27 people were actually removed from the thing out. I mean, they disconsented for the second phase, second dose. That's what we see in the AstraZeneca trial. We see that for second dose, 27 people disconsented. Why they disconsent? Maybe they had a problem and they dropped off actually. So just not regarded as a adverse event. That's 100% true. And basically doctors जो community health centers, अभी तक तो बहुत सारा इंग्लिश में ही चल रहा था. नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, आई विल ट्राई. ठीक है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, बट ये सारा कुछ जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आते हैं उनमें CHC, PHC और डॉक्टर्स का बहुत ही मतलब एवरेज पर्सन के हिम्मत नहीं है कि इतना अगेंस्ट में गवर्नमेंट के जा सके, क्योंकि जैसा कि आपने दिखाया उसमें कि ICMR के डॉक्टर बलवंत के बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे, तो अगर कोई अकेला बोलेगा भी तो उसको हटा दिया जाएगा या कुछ ना कुछ कर दिया जाता है. तो नाउ कमिंग टू द सर्टेन जर्नल्स में जिनमें TTS के बारे में आया हुआ है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए, तो अभी लेटेस्ट जर्नल है फ्रंटियर जर्नल, जो है बहुत फेमस जर्नल है, उसका वॉल्यूम 4 है. 2024 में नीदरलैंड की स्टडीज आई है बाय डॉक्टर फ्लोरेंस एंड एटॉल, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स आर कॉमनली रिपोर्टेड आफ्टर कोविड वैक्सीन. तो ये एक आ गई है, और उन्होंने ऑलमोस्ट 65% women are going to have menstrual disorders after the COVID vaccine. और as per that author, heavy menstrual bleeding जो है वो एक common problem हो जाती है. और according to that doctor, editor of this article, she has said कि ये product information Moderna और फाइजर ने अपने ब्रोशर में डाली हुई है, पर मैंने ब्रोशर चेक किया था, अभी इंडिया वाले ब्रोशर में ये मेंशन नहीं है. माइट बी कि नीदरलैंड के जो ब्रोशर है उसके अंदर. देन सेकंड स्टडी जो है वो पेट्रिया मोटा की है, जिसका PMC नंबर जो है PMC ID 921266 है. उसमें 39 केसेस इन ब्राजील में स्टडी हुए हैं TTS के, जिसमें 61.5% जो है विमेन है, एंड फर्स्ट केस जो था वो प्रेग्नेंट वुमेन में हुआ था. ओवरऑल मॉर्टेलिटी वाज 51%. थर्ड जो है एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में ये 2022 की 18 जनवरी की स्टडी पब्लिश्ड है बाय ISEC-C. उन्होंने USA के इस पे बीच में कोविड के वैक्सीन के स्टडीज करी है, जिसमें अराउंड 57 केसेस स्टडी हुए, उसमें 69% जो है वो वेमेन थी, एंड
ऐसे ही अराउंड 61 स्टडीज हैं जिसमें 40 क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है, 18 जो है वो कोहोर्ट स्टडीज हैं, 3 सेल्फ कंट्रोल्ड स्टडीज हैं। तो इसमें पाया गया है कि अराउंड 30% जो है, जो 61 स्टडीज है उनमें 30% जो है विमेन को अपने periods की, there is a change in the menstrual cycle length, there is a change in the amount of the bleeding, there is a change in the breakthrough bleeding and वो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन जो होता है वो विमेन को होता है। तो कोविड वैक्सीन का जो वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और इनसे, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो हार्मोन से रिलेटेड है विमेन का, इट इज अबाउट पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ओवेरियन एक्सिस, जो कि एक बार आपकी साइकिल गड़बड़ होती है तो उससे ये आपका जो पूरा एक ब्रेन से लेकर ओवरी तक का जो यूट्रस तक का कनेक्शन है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और वंस आपका इंटरनल हार्मोनल मिलियो विमेन का जो है वो अगर डिस्ट्रॉय होता है तो आपके कैंसर के चांसेस, आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस, आपके प्रीमेच्योर मेनोपॉज के चांसेस, आपको डायबिटीज के चांसेस, आपके ओबेसिटी के चांसेस, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के चांसेस जो है वुमेन में बढ़ जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोरिलेशन कि एक कोविड वैक्सीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ऑलमोस्ट 50 to 60 women कैन हैव द प्रॉब्लम्स। और वंस योर साइकिल्स गो हेवियर तो आपको सारी चीजों के, स्पेशली कैंसर से लेकर इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर मेनोपॉज, अगर प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है तो भी आपके कैंसर्स की, ब्रेस्ट कैंसर्स की और ओवेरियन कैंसर की रिस्क बहुत बढ़ जाती है। सिमिलरली तो this is all related to your and partly related to your platelet counts, क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाती हैं तो उससे आपके पूरा का पूरा ये जो हार्मोनल फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई जस्ट वांटेड टू से कि ओमश्री के फादर ने बताया कि ऑर्गन डोनेशन में, तो ऑर्गन डोनेशन में स्टडीज आ चुकी हैं कि क्योंकि ये बॉडी की है कि अगर बॉडी में एक बार कोई एंटीजन चला जाता है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती है तो सारे के सारे सेल्स के पास उसकी मेमोरी रहती है। तो अगर आपने ऐसे जो कोविड वैक्सीन के विक्टिम्स हैं जिनको टीटीएस हुआ है उनका ऑर्गन किसी और दूसरे मतलब रेसिपिएंट को दिया है तो डेफिनेटली जो ऑर्गन्स गए हैं उनके जो सेल की मेमोरी है उसमें एंटीबॉडीज रहेंगी और वो कभी भी आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। सो ये तो अभी साइंस बताएगी, पर अभी ऑलरेडी स्टडीज आ चुकी हैं और उन स्टडीज में ये आ चुका है कि जिनको टीटीएस हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड वैक्सीन, उनके जो रेसिपिएंट्स हैं उनको टीटीएस होने के काफी चांसेस हैं। सो दीज आर द हेल्थ implications moreover related to the TTS in the women, but overall there are lot of complications जिसको डॉक्टर्स रेयर और कोइंसिडेंटल, पर जैसे डॉक्टर अमिताभ ने कहा कि हमारे लिए और आपके लिए 1 into 800 हो सकता है, पर होल पॉपुलेशन पर लेते हैं तो द नंबर इज वेरी हाई एंड दैट्स व्हाट द डॉक्टर्स नीड टू कीप इन द माइंड, जो कि नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि बाकी लोगों की जान बची है। तो इस हेल्थ के विमेन हेल्थ में जो इसका इम्पैक्ट है वो मैंने आपको बताया, और इसके बारे में एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, कैन आस्क।